Hi everyone, this side Ayushi Singh. Today I will be discussing about the topic importance of business environment, or we can say significance of business environment, या फिर हम कह सकते हैं why the business environment is important. So if any of these three questions arise in your exam, you have to write the same answer. First point says what? It aids in seeing the possibilities and gaining an advantage over other. See, when you continuously scan the business environment, means business continuously scan or analyzes the business environment, then that business is able to identify the opportunity, and that business should grab that opportunity as quickly as possible to take the advantage of that opportunity. Why? See, जब आप उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हो, उस अपॉर्चुनिटी के एग्जिस्ट करने पे उसका फायदा उठाते हो, तो आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, आपका बिजनेस का सर्वाइवल अच्छा हो पाता है और आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो पाती है. सी, when you continuously study business environment, जब आप लगातार business environment की study कर रहे हो, तो आप इतने expert हो जाते हो that your business is very much expert in quickly and easily identifying that opportunity, and by taking the advantage of that opportunity तुम्हारे ही business को फायदा होता है. You are the first one to take the advantage of that opportunity. तो आप क्या करते हो? You get the first mover advantage. तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को जैसे ही आइडेंटिफाई किया मार्केट प्लेस में या एनवायरमेंट में, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी आपने अपने बिजनेस को मॉडिफाई कर लिया. सो इन दिस वे आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आ गई, आपके बिजनेस की पोजीशन इंक्रीज हो गई मार्केट प्लेस पर, और आप कॉम्पिटिटर से भी एक नंबर आगे आ गए, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया अपॉर्चुनिटी, आपने पहले आइडेंटिफाई कर ली, तो आपने उसका फायदा पहले उठा लिया. सो इन दिस वे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से ऐसे हमारे बिजनेस को हेल्प मिलती है, ग्रोथ मिलती है, हमारे बिजनेस का सर्वाइवल अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म तक हमारा बिजनेस सर्वाइव करता है. सी, व्हेन यू कंटिन्यूअसली एनालाइज द shifting of the economy, or we can say the business environment का you continuously analysis करते हो, तो you are able to expand your business. अपने business को आप expand कर पाते हो, आप अपने business के अंदर new developments लेकर आ पाते हो, new products और services लेकर आ पाते हो, so that जो product अब आप new बना रहे हो, that is according to the preference of the customer. जैसे ही customer की preference change हुई मार्केट में या फिर एनवायरमेंट में, अब कस्टमर को चाहिए कि वी वांट टू ईट ऑयल फ्री प्रोडक्ट, हमें अब ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए. तुमने उस अपॉर्चुनिटी, उस चेंज को नोटिस किया, एंड यू ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी एज क्विकली एज पॉसिबल, और आपने अपने प्रोडक्ट में उसका मॉडिफिकेशन किया, एंड देन यू सोल्ड दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. जब कस्टमर्स आए, उन्होंने देखा वो प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को फायदा हो गया. ओके, सो आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते रहना है, एक्सेप्ट करते रहना है, न्यू मार्केट ट्रेंड्स को एक्सेप्ट करते रहना है, सो दैट आपका बिजनेस एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड कर पाए, और आपके बिजनेस का सर्वाइवल, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल पर इंक्रीज हो पाए. ओके, there are many opportunities in the environment, and in order to boost a business success, it is important to recognize those chances. Ongoing analysis of constantly shifting economy provides prospects for expansion, facilitating the development of the new goods or services to address vacancies in the market. Organizations can use business environment analysis to find new opportunities, or we can say the possibilities and market trends that will provide them a competitive edge. The corporate environment offers views into new trends, possibilities in the opportunities, or possibilities are same, opportunities in the market and possible dangers. Organizations can find new market, customer requirements and commercial opportunities by examining the external forces. This enables them to take advantage of changes and maintain an advantage over the competitor. Okay,
Now, second step, it enables the organization in recognizing the danger and the warning sign. See, when you are continuously scanning the business environment, you are identifying the danger. You are understanding that what will be the future danger for our business. हमारे बिजनेस के लिए अब कौन सा फ्यूचर डेंजर आने वाला है जिससे हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है. सो व्हेन यू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, it is you quickly and easily identify that danger or warning sign. You accept that warning sign, modify your business according to this change, और आप इस danger से जल्दी बच जाते हो. जब आप जल्दी से जल्दी उस warning को accept करोगे, identify कर लोगे, तो आप जल्दी से जल्दी इस danger से बच पाओगे और अपने business को आगे बढ़ा पाओगे. So you should try to study business environment in such a way कि आपको जैसे ही danger दिखाई दे रहा है, you accept that danger, you modify your business accordingly and maintain your position at good level. अब क्या है, जैसे ही danger आया, you should plan backup plans. ठीक है, आपको you should create backup plans, आपको you should apply risk management measures, और या फिर हमें हमारे business को study करना चाहिए about the economic, political, legal, technological issues के बारे में, so that if there is a change taking place in the technology, if there is a change taking place in the policies or the rules or regulations, if there is a change taking place in the political area or the economical area, then you accept all these change, modify your business according to these change, और आप अपने business को long run पर survive कर पाते हो और आप अपने business में एक growth देख पाते हो, आपकी business की performance increase हो जाती है, business का survival भी आपका एक level पर अच्छा हो जाता है, and your business position in the marketplace is at good level. Okay? तो क्या होता है कि आपको डेंजर को एज सुन एज पॉसिबल आपको उस डेंजर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इग्नोर करोगे तो वो डेंजर और बढ़ जाएगा, वो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी आपके बिजनेस के लिए, और मे बी यू आर नॉट एबल टू रन योर बिजनेस. तो क्या होता है, यू शुड कीप एन आई ऑन द इश्यूज लाइक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई तो आप उनको चेक करो, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स आई तो उनको चेक करो, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई, मतलब आपके फाइनेंस अब स्टेबल नहीं है, आपको लॉस पर लॉस हुए जा रहा है. सो यू शुड कीप एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स सो एज टू प्रोटेक्ट दीज अनफेवरेबल कंडीशंस फ्रॉम द business performance, so as to protect your business from these unfavorable conditions, so that your business, आपके business को इतना affect ना हो इन सारी चीजों से. Okay, now understanding potential future danger is made easier by the business environment. Environmental awareness can act as an early warning system and helps management in quickly identifying the number of the dangers. So, through strategic implementation of the risk reduction measure, firms can effectively recognize and reduce the possible risk and threats in the business environment. Organizations can limit the impact of unfavorable occurrence and protect their corporate interest by keeping an eye on the issues including technological problem, regulatory changes, and financial instability. Risks and uncertainties occur in the environment in which businesses operate. Organizations are able to recognize and evaluate any danger, internal as well as external, by having an in-depth knowledge of their business environment. Organizations can reduce the negative effect of unexpected occurrence, create backup plans, apply risk management measures by being aware of economic, political, legal, and technological issues. This promotes the stability and long-term survival of the company. Now, third step says what? It facilitates using the helpful resources. See,
allocation of resources for the future use is very important. Allocation of resources means resource को इकट्ठा करके रखना for the future use of the business is very important. Resources में क्या आता है? Capital, manpower, machinery, raw material, equipments, land, building, tools, vehicles, all these are resources. If any of these resources is not available in the company or the business, your business will not be able to run. How? अगर आपके पास मशीन नहीं है, will you be able to run your business? आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो मशीन में कौन क्या डालोगे जो प्रोडक्ट गुड्स और प्रोडक्ट्स बनकर आ जाएंगे? Not possible, right? So all these resources are very important in order to manufacture goods or services, and these goods and services are sold in the market so that customer can come and purchase these goods and services, pay for these goods and services, and you are the one, your company is the one who is earning profit from these customers. Okay, so in this way resources की availability होना हमारे business के लिए is very important. When you continuously study the business environment, what is the good thing happening? See, जब आप लगातार business environment की study करते हैं, you are able to know the availability of these resources कि ये resources कहाँ available होंगे, कैसे available होंगे, और machine कहाँ से मिलेगी, machine कौन सी proper रहेगी हमारे business के लिए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी कौन सी रॉ मटेरियल हमारी बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, कैपिटल कहाँ से लेंगे, मैन पावर कैसे एम्प्लॉयज को कैसे रिक्रूट करेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर्ड थ्रू द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो आपकी नॉलेज इतनी इंक्रीज हो जाती है अबाउट दीज रिसोर्सेज दैट यू आर एबल टू गेट ऑल दीज थिंग्स वेरी क्विकली एंड इजीली. क्या है कि जब आपको when you study about the area, when you focus on the area like marketing, recruiting employees, research and development, तो आप अपने बिजनेस में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल पाता है उस इन्वेस्टमेंट का. कैसे? when you are studying the marketplace, जब आप मार्केटिंग के बारे में स्टडी कर पा रहे हो कि प्रोडक्ट को कैसे मार्केट प्लेस पर लेकर आना है, उसको कैसे सेल करना है, या मार्केट प्लेस पर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है कस्टमर्स के थ्रू, या किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है. सो इन दिस वे यू विल बी स्टडिंग अबाउट द मार्केट प्लेस और द मार्केटिंग प्रोसेस so that you get more and more benefit or profit through these customers, through the marketplace, through the goods and services which are sold in the market. जब आप recruit करते हो employees को, you should recruit those employees, you should hire those employees or the workers जो skilled हो, trained हो, dedicated हो work के लिए, जो जिनका commitment towards the work is very what we say very good, जो अपनी expert field में इतने अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस बहुत एफिशिएंटली दे पा रहे हैं. यू शुड हायर दोज वर्कर्स, यू शुड हायर द रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज, यू शुड हायर द लेबर जो हार्ड वर्किंग है, जो वर्कर हार्ड वर्किंग है, जो वर्कर अगर हम उससे एक 1 आवर एक्स्ट्रा वर्क भी करा रहे हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. व्हेन now if we talk about research and development, when you are researching the marketplace कि यहाँ इस marketplace में किस तरीके का प्रोडक्ट बिक रहा है, या कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, या फिर किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो हमारी कंपनी को समझ आता है वी शुड प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर कैन परचेज दीज प्रोडक्ट मोर एंड मोर और हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो सके, हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें.
Development says that when you are developing new technologies inside your business, or we can say internal environment के अंदर आप new technologies ला रहे हो, new development कर रहे हो, new policies, new procedures लेके आ रहे हो, new strategies बना रहे हो, new plans बना रहे हो, means you are developing your business, you are developing your internal environment of the business. So in this way you are earning maximum profit from the investments, you are getting maximum return on investment. Okay, so all these resources are very much helpful in this way, utilizing the environment's resources, that is input. Business and industry transform them into useful products that they then supply to the society. A commercial organization has access to a number of resources in the business environment, including capital, manpower, machinery, raw material, and many more. To know the availability of these resources and make them available quickly and easily, such knowledge is necessary. A business enterprise produce goods and services for its clients, pay taxes to the government, serve investors, and so on. Organization can maximize their return on investment by optimizing their investments in the area like marketing, recruiting employees, and research and development by selecting areas of the strategic importance and matching resource allocation with the business objectives. Okay, now fourth point says that it assists in managing, or we can say dealing with the quick changes. See, when there is a change coming in the environment, you should accept that change, whether that change is positive or negative. If it is positive change, it is an opportunity for you. If it is negative change, it is a danger for you or a warning sign for you, but you will have to accept both. So if you identify any opportunity, grab it as quickly as possible so as to take the first mover advantage. Now, if there is a threat, you should quickly identify that threat so that you quickly solve the problem or modify your business according to that change, और आप अपनी business को protect कर सको उस harm से. Okay, so in this way when there is a change taking place, modify your business accordingly. क्योंकि क्या होता है, for example एक technological change आया और आपने उसको उस technology के change को accept नहीं किया, आपने सोचा नहीं it will be a very much what kind of disturbance for my business or for my internal environment of the business, so you are not accepting that change. But क्या है, आपके जो competitor है उसने उस चेंज को, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और आज वो कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है कम टाइम में, एंड यू आप बहुत स्लो हो गए हो प्रोडक्शन के मामले में. जब आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो तो प्रोडक्ट आपका मार्केट प्लेस पर आ ही नहीं पा रहा है, आपके प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो रही है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं पा रहा है, आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल पा रहा है. सो इन दिस वे यू शुड एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस. जब ये चेंजेस आप एक्सेप्ट करते हो, यू आर एबल टू रन योर बिजनेस इन स्मूथ वे, और आपका बिजनेस एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड करता है in the marketplace, or your business will be surviving and performing in a very good way. So जो भी issues आते हैं, जो भी changes आ रहे हैं, मे बी अनस्टेबल मार्केट हो रहा है, या फिर डिमिनिश्ड ब्रांड लॉयल्टी हो गई, या फिर मार्केट डिवाइड हो गया, शिफ्टिंग इन द फैशन हो गया, सेलेक्टिव कस्टमर्स हो गए हैं, ऑल दीज चेंजेस शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. और आपको इन सब सिचुएशंस को ऐसे मॉडिफाई करना है कि आपके बिजनेस को इन सिचुएशंस को सॉल्व करके उस बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट निकाल पा रहे हो. If we talk about unstable market, see, unstable market कब होता है, when the supply of the product is very low in the market, और जब उस product की supply low हो गई है तो you are not able to, the customer is not able to get that product, या फिर किसी शॉप पर वो मिल रहा है, किसी शॉप पर नहीं मिल रहा है, तो अब उस product की प्राइस हाई हो जाएंगे. अब उस product की प्राइस हाई हो गए, वो product एक्सपेंसिव हो गया, customer is not able to purchase that product. अब diminished brand loyalty is what?
जब आप एक ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, यू आर परचेजिंग दी सेम ब्रांड रेगुलरली, और आप बहुत सालों से एक ही ब्रांड को पकड़े हुए हो, नाउ यू आर फीलिंग बोर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, आपको कोई और ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने का मन कर रहा है, नाउ यू विल बी शिफ्टिंग टू दी अनदर ब्रांड। सो आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो डिमिनिश हो गई, अब आप दूसरी ब्रांड पर पहुंच गए हो। मार्केट डिवाइड इज व्हाट कंपनीज ट्राई टू put their प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर मार्केट पोजीशन, कि वो कंपनीज डिसाइड कर लेती है मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करूंगी, तुम अपने प्रोडक्ट को यहाँ सेल करो। इन दिस वे मार्केट डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दीज कॉम्पिटिटर्स आर वेरी लेस। अब कंपनी के कॉम्पिटिटर्स नहीं बचे तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो जाता है इस चक्कर में, बट कस्टमर को लॉस हो जाता है। शिफ्टिंग फैशन इज व्हाट? शिफ्टिंग फैशन इज व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग any kind of a dress or manufacturing any kind of a dress। अब जैसे ही एकदम से क्विक चेंज आया फैशन में, वो ड्रेस आपकी अब पुरानी ड्रेस कहलाई जा रही है, और इससे अब न्यू ड्रेसेस आ रही है, न्यू मॉडर्न काइंड ऑफ ड्रेसेस आर कमिंग इन द मार्केट, तो nobody is purchasing your that dress, तो you will have to quickly modify that dress and bring it to that competitive level, कि अब जब वो मार्केट प्लेस में रखी जाएगी तो कस्टमर उसको प्रेफर करेगा and you will be earning profit। So in this way, if any of the changes arising in market, or we can say in environment, you should accept those change, bring the solution, or take the good measures, so that you can survive in the market at in the long run, or you can survive in the market at good position। Okay, तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो, बिकॉज चेंजेस हमेशा नेगेटिव होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। कभी कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी कभी नेगेटिव होते हैं, दोनों को ही एक्सेप्ट करके अपने बिजनेस को मॉडिफाई करो, सो एज टू स्टैंड एट गुड पोजीशन इन द मार्केट, और अपने कॉम्पिटिटर से आप, अपने राइवल से आप एक नंबर, एक स्टेप ऊपर उठ पाओ। इस वजह से आपको वो चेंजेस एक्सेप्ट करने जरूरी हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में चेंज कर दिया, सी यू डिसाइडेड टू सेल द प्रोडक्ट एट द प्राइस लाइक 100 रुपीज पर आपने सेल करने का सोचा उस प्रोडक्ट को, नाउ गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स चार्ज कर दिया, तो आप 100 रुपीज का जो बेच रहे थे प्रोडक्ट, अब गवर्नमेंट भी उस पर पैसा अपना ले रही है, तो आपके लिए प्रॉफिट जो 100 रुपीज में से जो आपके लिए 20 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा था, अब गवर्नमेंट का भी उसमें से पैसा जाएगा, तो आपको मे बी 5 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। सो एज सून एज these kind of the change are coming in the environment, you should quickly and you should identify as soon as possible all these changes, so that you quickly modify your products price। जैसे ही आपने मार्केट में उस प्राइस उस प्रोडक्ट का प्राइस 120 करके सेल किया, तो आपकी जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था उस प्रोडक्ट पर, तो आपका भी प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अब आपको लॉस नहीं हो रहा है। सो एज क्विकली as possible you should identify those changes so as to modify your business according to these changes, और अपने losses को बचा सको। Okay, the business environment is changing quickly and shifting market conditions are having an impact on the industry। A changing business environment includes things like an unstable environment, diminishing brand loyalty, market divide, shifting fashion, more selective customers, and strong worldwide dispute. The corporate environment should be continuously studied and scanned in order to efficiently handle the emerging changes. Businesses can be greatly impacted by factors like change in customer taste। See, if there is a change in the customer taste coming, see, customer को अब ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए। पहले कस्टमर ऑयल वाला प्रोडक्ट खा लेते थे, अब वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अब वो हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू प्रेफर द प्रोडक्ट विच इज ऑयल फ्री, और आप ऑयली प्रोडक्ट बना रहे थे, नाउ यू हैव टू मॉडिफाई योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स प्रेफरेंस, और तब आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। गवर्नमेंट चेंज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। टेक्नोलॉजी चेंज, किसी भी टेक्नोलॉजी में एक और अच्छा इंप्रूवमेंट आया जिसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर व्हेन दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, तो आप उस टेक्नोलॉजी से आप अपने वर्क को 1 घंटे पहले फिनिश कर पा रहे हो, तो आपका 1 घंटा सेव हो गया। सो इन दिस वे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का चेंज, इफ देयर इज अ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग इन द एनवायरनमेंट, यू शुड एक्सेप्ट दैट चेंज एंड यू शुड मॉडिफाई योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू दैट चेंज, जिससे आपके बिजनेस में और फास्ट उस बिजनेस को और फास्ट करने का तरीका समझ आ जाए और आपका बिजनेस कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक अच्छी पोजीशन पर खड़ा हो। ओके, organization that keeps a close eye on and understand the business environment are better able to predict these shifts and modify their plans accordingly. They are able to satisfy clients' need, remain competitive and stay relevant as a result. So in this way आपको change को accept करना चाहिए, क्योंकि changes आपके business को improve करते हैं। Okay? It facilitates the formulation of planning and policies. Formulation of planning and policies means what? See, जब आप business environment की study किए जा रहे हो, तो आपको एनालिसिस करने में, बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने में, उसकी अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करने में कि व्हाट द चेंजेस आर कमिंग, आप बहुत इजीली कर पाते हो, बहुत क्विकली कर पाते हो। तो अब क्या है, व्हेन यू आर स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, यू आर एबल टू मेक प्लान्स और यू आर एबल टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इफ देयर इज एनी चेंज इन द पॉलिसी टेकिंग प्लेस इन दैट एनवायरनमेंट, और आपने कोई प्लान पहले ही ऑलरेडी बना दिया था अपने बिजनेस में, अब उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने जैसे ही चेंज देखा कि पॉलिसी, गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी में चेंज किया है और आपका जो प्लान बना हुआ है उसमें उस चेंजेस के बारे में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ, नाउ यू आर एक्सेप्टिंग दैट चेंज और आप अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, सो दैट आगे आपको चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, आपको चल के आगे गवर्नमेंट ये ना बोले कि आपको अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग अस। लेट अस टेक द एग्जांपल इन मोर क्लियर वे, मैं आपको समझाती हूँ। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में ये चेंज किया कि आपने जो प्रोडक्ट बेचना है, अब उस प्रोडक्ट में आप जीएसटी लगाकर बेचोगे, बट आपने जो प्लान्स बनाए थे, अब आपने मैन्युफैक्चरिंग ही उस हिसाब से करनी शुरू करनी है कि वो प्रोडक्ट का जो प्राइस बैठ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में जो प्राइस बैठ रहा है, दैट कैन बी आई थिंक 80 रुपीज। तो अब जब वो 80 रुपीज का बैठ रहा है प्रोडक्ट, जब उसमें जीएसटी लग गई है, तो अब गवर्नमेंट को भी तुम्हें पैसे देने हैं, तो आपने उस 80 रुपीज के प्रोडक्ट को 90 रुपीज में बेचने की सोची थी, बट अब जीएसटी लगा रही है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को भी उस प्रोडक्ट से पैसा चाहिए। नाउ यू विल बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट एट 100 रुपीज सो दैट आपको प्रॉफिट उतना ही हो जितना आपने सोचा था। सो इफ यू आर गुड एट स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, उसका एनालिसिस अच्छे से कर पा रहे हो, तो एज क्विकली एज पॉसिबल यू आर ग्रैपिंग दैट चेंज, यू आर अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाइंग द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। तो आप फटाफट से उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छा ये पॉलिसी लगाई है गवर्नमेंट ने, ओके कम, हम इसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को चेंज करते हैं। नाउ वी विल बी सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज रादर देन सेलिंग द प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 90 रुपीज। सो इन दिस वे जब बिजनेस एनवायरनमेंट की आप अच्छे से स्टडी करते हो, तो आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर पाते हो, और आप नेगेटिव लॉसेस, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो एनवायरनमेंट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, उनसे बच जाते हो। एंड नाउ यू आर एबल टू सर्वाइव एट गुड पोजीशन इन द मार्केट, और यू आर एट द कॉम्पिटिटिव लेवल, और योर बिजनेस इज परफॉर्मिंग इन अ गुड वे। ओके, नाउ
A business faces both opportunities and risk in the business environment. Understanding the corporate environment helps in market making decisions on future planning. A comprehensive awareness and the study of the business environment aid in planning and policy creation of the company. Planning is a crucial task for the company. It is essential to have the access to the future environment and the impact of such conditions. The challenges that a corporate environment presents exist in the enterprise future planning. By attempting the resolve the by attempting to resolve the issue, they learn how to deal with the potential problems in the future and create fresh approaches to expanding their company. Understanding your business environment makes it simpler to create a realistic strategy and make sure they are carried out successfully. Okay, now it supports better performance. Business environment कैसे support करता है better performance? When you are scanning the business environment or you are studying the business environment, you accept the opportunity that arise in the environment. सो जब आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया, यू मॉडिफाइड योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी. आपकी कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आया, आपने उसे एक्सेप्ट किया. जब आपने उस टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट को एक्सेप्ट किया तो आप उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट है वो फास्ट कर पाए, और आपका प्रोडक्ट जो 2 घंटे में प्रोड्यूस हो पा रहा था, आज वो प्रोडक्ट आपका 1 घंटे में प्रोड्यूस हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. तो क्या हुआ? Better performance. So in this way, when you study the business environment, when you study the changes taking place in the business environment, you should grab those opportunities as quickly as possible so as to take the advantage of these opportunities. क्योंकि इन opportunities से आपके ही business को फायदा होता है. I know that threats भी आते हैं, but threats को भी accept करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उस threat को accept नहीं किया, उस warning साइन को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज नहीं किया, मोल्ड नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो क्या होता है कि वो डेंजर आपके लिए इतना ज्यादा बिग हो जाता है, इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आपके बिजनेस को स्टॉप भी कर सकता है. सो बेटर परफॉर्मेंस के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हेन वी स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हेन देयर इज अ चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू आइडेंटिफाई दैट चेंज. लेट अस टेक द अदर एग्जांपल. कस्टमर अब प्रेफर कर रहा है कोई दूसरे टेस्ट का प्रोडक्ट. जो टेस्ट आप बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, वो टेस्ट अब कस्टमर प्रेफर नहीं कर रहा है. अब कस्टमर प्रेफर कर रहा है ऑयल फ्री प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं डाइट प्रोडक्ट, एंड यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, वही ऑयली प्रोडक्ट बना रहे हैं आप. तो क्या है, when there is a change taking place in the environment, when you identify that change, you should grab that opportunity and you should modify your product according to that change. So जैसे ही वो change आपने देखा environment में कि अच्छा customers are preferring these kind of the product now, तो आपको जल्दी से जल्दी फटाफट अपने product में modification करना है, उसको अच्छे से कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाना है, एंड देन यू शुड सेल दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट. फिर देखना आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी अच्छी होगी, एंड ड्यू टू विच यू विल बी अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड योर बिजनेस पोजीशन इज एट गुड लेवल इन द मार्केट प्लेस. और आपके बिजनेस की सक्सेस भी रहेगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी. तो बेटर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली, ग्रोथ अच्छी है, आपके बिजनेस अच्छे से सरवाइव कर पा रहा है मार्केट प्लेस में, तो
बेटर परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है। सो इन दिस वे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से जब हमें चेंजेस के बारे में पता लग रहा है, हम जल्दी से जल्दी उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं और अपने बिजनेस को उस लेवल पर खड़ा कर रहे हैं कि आज हम मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे लेवल पर सेल कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्मेंस हो गई। बेटर परफॉर्मेंस हो गई तो मोर एंड मोर वी आर अर्निंग, मोर एंड मोर प्रॉफिट वी आर अर्निंग, ड्यू टू विच हमारी बिजनेस की पोजीशन इज एट गुड what we say good level in the marketplace. Okay, so these are the 6 points of the business environment, that why is business environment important. You will have to write all these 6 points. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, please do subscribe my channel. Thank you.